آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے. جو کچھ آج انسان کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ کل اس کا اچھا ہو جائے. یہ کل دیکھا نہیں ہے، مگر اس پر جتنا یقین بڑھتا ہے اتنی زندگی حسین ہو جاتی ہے. کل ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے، مگر جتنا کل پر یقین بڑھتا ہے اتنا ہی زندگی حسین ہو جاتی ہے. مجھے کوئی ایک انسان بتائیے، مسئلہ سنی شیعہ کا بھی نہیں، مسئلہ حتیٰ مسلم غیر مسلم کا بھی نہیں، یہ جو کل کی امید پر آج اچھا گزر رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ ذرا بکھرے بکھرے سے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا زحمت فرمائیں، کچھ قریب آ جائیے. آ گئے اب تو آ ہی گئے نا. ایک سلوات پڑھ دیں. بلال سے پہن ذرا آخر میں اچھے نہیں لگ رہے ہو، تم آگے آ جاؤ. ایک سلوات پڑھ کے نبی کی ذات بھائی مل کر سلوات دیے کرو. توجہ چاہوں گا، ہر شخص مولانا جناب فیروز الدین رحمانی صاحب اہل سنت، ایک بڑا پرانا نام، کراچی کا ایک بڑا پرانا نام. ہمارے یہاں ان کا جو ایک مقام ہے وہ اہل علم جانتے ہیں، اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہیں. ان کے فرزند شاہ حسین رحمانی بہت اچھا گلا رکھتے ہیں. میں کچھ تاخیر سے پہنچا، ورنہ ہو سکتا ہے ان سے استفادہ ہوا ہو، ورنہ ہونا چاہیے تھا. تو آئندہ خیال رکھیے. بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، مگر سہیل شاہ کے بیٹھنے کے بعد انہیں پڑھوانا یہ آداب کے خلاف ہوتا ہے. تو جہاں مجھے ان کا ادب کرنا ہے وہاں مجھے ان کا بھی ادب کرنا ہے، اور یہ مجلس ادب سکھانے کی جائے. صلوات پڑھنے والا تو ہم در حقیقت سب، آپ غیر مسلموں میں دیکھ لیں، مسلمانوں میں دیکھ لیں، جسے چاہیں اس سے جا کر بات کریں. ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ اپنے کل کو بہتر، اور اگر کل پر یقین نہ ہوتا تو آج نہ گھر بنتے، نہ کاروبار ہوتے، نہ سیاست ہوتی، نہ دین کی عبادت ہوتی. ہمارا ہر کام کل کی بہتری کی وجہ سے. تو مجھے اب یہ اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا. مجھے جو نتیجہ چاہیے، نتیجہ یہ چاہیے کہ ہم سب کل کی تلاش میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان فطری طور پر منتظر پیدا کیا گیا. صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ. بھائی روزانہ کا مسئلہ ہے یہ ہمارا. ہم اس وقت بھی اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو اپنے کل کو اچھا کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اگر آج نماز پڑھی ہے تو اس لیے کہ ہمارا کل اچھا ہو جائے. آج اچھا مادی دنیا میں چلے جائیے، اگر ہم نے فلاں جگہ پیسہ لگا کے کاروبار شروع کیا ہے تو کل پر یقین ہے تبھی آج پیسہ لگایا ہے. یہ کل کی بات اور کل کا تصور اور کل کا یقین اور کل پر اعتماد، یہی تو انتظار ہے. یعنی ہم فطری طور پر سب منتظر پیدا کیے گئے. کچھ لوگوں کو قیامت میں اللہ دیکھنے کا شوق ہے. بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجیے آ جائے گا. کچھ لوگوں کو کل قیامت میں اللہ دیکھنے کا شوق ہے. مجھے ان سے کچھ پیار ہے، اور پیار اس لیے ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر بتاتے ہیں کہ ہم بھی منتظر ہیں. فرق اتنا ہے، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا کل بہتر ہو جائے، اور یہ کل کی بہتری اور آئندہ کی بہتری یہ انسان ہر شخص کے ساتھ علیحدہ علیحدہ جڑا ہوا. آپ دیکھیے گھمسان کی جنگیں، خون چکا جنگیں میرے مولا علی نے لڑی اور جیتی. صحیح چل رہا ہے ویسے. صلوات اور پڑھ لیں. اس سے بہتر صلوات کیجیے گا. ایسی جنگیں میرے مولا علی نے ان کا سامنا کیا. جنگ بدر سے لے کر جنگ نہروان تک سارے مسلمانوں نے 80 جنگیں لڑی نبی کے ساتھ. میرے مولا نے 83 جنگیں لڑی. جی. اور ہر جنگ کا رخ اور انداز اور چہرہ اور اس کا اختتام مختلف. جی جنگ بدر کو آپ دیکھیں تو جنگ بدر میں لڑنے والوں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ نے بدریوں کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ مسلمانوں میں کسی مجاہد کو نہیں دی. لہذا بدریوں کی عظمت ہے کہ جو 313 تھے، اب آخری بدری جو آئیں گے وہ بھی 313 ہوں. ان 313 کا اتنا مقام ہے بدر والوں کا کہ جب اب اس کائنات پہ عدل و انصاف نافذ ہوگا، اس کائنات پہ جو عدل نافذ کرنے ذات آئے گی، اس کے اصحاب بھی وہی تعداد میں رکھے گئے ہیں جو بدریوں کی تعداد. اصحاب بدر اور اصحاب امام زمانہ. صلوات پڑھ لیں محمد.
ऐसी जंग बद्र हो रही है। और फिर जंग बद्र के में कुछ किराए के कातिल भी लाए थे मुशरिक। अच्छा, मैं 1400 साल पुरानी जंग पढ़ रहा हूं, मगर मैं हूं 1400 साल बाद का। तो ये इस्तिलाह जदीद जरूर है, मगर मिजाज पुराना है। ये किराए के कातिल लाने वाला मिजाज, ये आज की इस्तिलाह जरूर है कि साहब किराए के कातिल, ये पहले तो ये इस्तिलाह ही नहीं थी, ये तसव्वुर ही नहीं था। तो ये कैसे मैंने कह दिया, मिजाज तो पुराना है ना। इब्ने नौफल नामी एक बहुत बड़ा जंगजू, जो एक बार में घोड़े के चारों पैर काट देता था। एक बार में एक इतनी ताकत से हाथ चलाता था कि चारों पैर घोड़े के कट जाए। इस कैफियत का जंगजू, एक सिपाही और उस्ताद, लड़ने वालों और जंग सिखाने वालों का उस्ताद, आदाब हर्ब और जंगी उसूलों से आशना, ऐसा एक पहलवान, एक ऐसा जंगजू असहाब बद्र के अंदर मुशरिकीन ने मक्का लेकर आए। जब सरकार को मालूम हुआ जंग जम गई और मैदान सज गया, तो सरकार को मालूम हुआ कि ये इब्ने नौफल को भी लेकर आए। तो हजरत ने उसका जो कैफियत थी, मैं मेंबर से उसके फराइल नहीं पढ़ सकता, यानी उसकी कैफियत नहीं पढ़ सकता, यानी जो उसके लिए लिखा है तारीख में कि जो उसका रोब था, जलाल था, उसके पेश नजर सरकार ने दोनों हाथों को उठाकर दुआ की, या अल्लाह मेरे चाहने वालों को, मुसलमानों को, इन उम्मतियों को नौफल से महफूज रख। इसका मतलब है कि कुछ था। सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा इक्फिनी नौफल, या अल्लाह, सरकार का फरमान, सरकार की दुआ बद्र के अंदर, या अल्लाह हमें नौफल से बचा। अभी अपनी उम्मतियों के लिए फरमा रहे हैं, अपने सिपाहियों के लिए। ये कहकर हजरत ने दुआ की और जंग का नक्कारा बजा और जंग शुरू हो गई। कुछ देर के बाद जब घमसान की जंग और एक मैदान गर्म और कैफियत जंग की कमाल पर, तो सरकार एक टीले पर तशरीफ ले गए। आपके साथ आपके मुहाफिजीन थे, आप असहाब थे, जो तय था कि कौन कहाँ क्या रहेगा किस मरहले पर। हजरत एक टीले पर खड़े होकर मैदान में किसी को देख रहे थे। दूर से मौला अली ने आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप किसी को तलाश कर रहे हैं? मौला नबी ने आवाज देकर कहा, या अली मन ले इल्मिन बे नौफला, नौफल के बारे में कोई जानता है कि वो कहाँ है? मेरे मौला ने वहीं से आवाज देकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने उसी वक्त मार दिया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। या रसूल अल्लाह, जंग बद्र में क्या हुआ वो आपके पेश नजर तारीख बड़ी अजीब अंदाज से मामलात को लिख रही है। फिर ये जंगें आगे बढ़ती रही और हर जंग में सिवाय जंग तबूक के, और उसमें भी मौला अली नहीं गए, तो एक फजीलत उसके बदले में अल्लाह ने दे दी। और हर जंग में अली था, कि यहाँ तक के मुसलमानों का अकीदा ये है, अहले इस्लाम का अकीदा ये है कि इस्तवल इस्लाम बिसैफ अली, जुल्फ़िकार अली ने इस्लाम को मजबूत किया। ये एक नजरिया, और एक इससे हटकर जो बातें हैं वो कभी और। यानी फिर उसके बाद आ जाइए आप जंग सिफीन, उससे पहले जंग जमल, फिर जंग सिफीन, फिर जंग नहरवान। ये कोई आसान जंगें थी? आज हम उन जंगों के बारे में सोचते हैं तो एक खास मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता है। उस वक्त में क्या हुआ होगा, मुतवज्जे है क्या कह रहा हूं? यानी आज मौला अली ने जंग जमल ये पहली जंग है जो नबी की रहलत के बाद मौला कायनात ने लड़ी है, और वो मुसलमानों से जंग है जी। यानी जिस अंदाज से मैं जो जाहिरी माहौल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फरमाया सरकार ने, मेरे मौला अली ने फरमाया कि इस जंग के इख्तिताम पर, जब जंग जीतने के मरहले पर आ गई ना, जंग तकरीबन ये समझे नजर आ रहा था कि मौला का लश्कर जंग जीत रहा है, तो आपने ऐलान फरमाया कि कोई माल गनीमत को हाथ नहीं लगाएगा। जब जीत जाओगे अपने अपने घोड़ों को, अपनी सवारियों को लेकर वापस आ जाओ। जो चीज जो छोड़कर चला गया पड़ी रहने दो, जो चीज जो मसलन छोड़ गया है उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तो एक सहाबी मोहतरम ने कहा, या अली, आप सुन्नत मुस्तफा से रूबरदारी कर रहे हैं। ये तो नबी की सुन्नत है कि जंग जीतने पर जितना माल दुश्मन छोड़ कर जाता है वो जंग जीतने वालों को लेना होता है। तो हजरत फरमाया, तुम में से किसी में जुर्रत है कि वो नबी की नामूस को माले गनीमत में रखे? क्या अली, बहुत मुश्किल जंग। बेटा जाओ, इस ऊंटनी के घुटने काट कर आ जाओ ताकि जंग ठंडी पड़े, हौदज गिरे और जंग ठंडी पड़े। उधर हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर से कहा, जाओ अपनी बाजी को जाकर, अपनी बहन को जाके बताओ कि वो मेरे मुकाबले में जो आई है तो उनके लिए क्या हुक्म है अल्लाह और अल्लाह के रसूल। तो हजरत मोहम्मद इब्ने बकर सगे भाई हैं, हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर हजरत अबू बकर के बेटे मौला अली के सपा सालार हैं। उधर बहन का मुकाबला है भाई के साथ। कितनी मुश्किल जंग होगी। मैं जो असली बात समझाना चाह रहा हूँ, मुंतकिल करना चाह रहा हूँ, वो रोशन है। मुश्किल तरीन जंगे, यानी ये वाली जो 3 जंगे हैं ना, ये जोरे बाजू पे लड़ी जाने वाली जंगे नहीं थी, ये जोरे आसाब पर लड़ी जाने वाली।
आसाब की मजबूती, नजरिए के मुताबिक और मजबूती के साथ आगे बढ़ना। हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर गए और जाके कहा कि मुझे इतना बताइए, बहन से कहा, बड़ी बहन है, मुझे इतना बताइए कि क्या ये हदीस आपने सरकार से सुनी या नहीं? थक तो नहीं रहे आप मुझे इतना बताइए कि क्या आपने ये हदीस नबी से सुनी या नहीं? अलीयुन माल हक वल हक मा अली, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार अली। आपने क्या ये हदीस सरकार से सुनी या नहीं कि नबी ने फरमाया अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, और या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। थोड़ी देर खामोश रही बीबी और फिर फरमाया हाँ ये मैंने नबी से हदीस सुनी है। जब उनसे इकरार ले लिया ना तो फरमाया मैं फिर अली के पीछे जा रहा हूँ, हक वहीं जाता है। कितनी मुश्किल जंग थी ये जंग भी अली मौला ने लड़ी। सफीन को ले लीजिए आप, पानी बंद कर दिया मौला के लश्कर पर। भाई मैं किसी नतीजे तक जाने के लिए जल्दी जल्दी मिसालें दे रहा हूँ। पानी बंद कर दिया अली के लश्कर पर। अली का लश्कर कोई छोटा लश्कर नहीं था, मगर 3,500 का सिपाहियों का दस्ता मोहम्मद इब्न अशअस किंदी की सरदारी में फुरात पर काबिज है। और पानी बंद कर दिया कि अली के लश्करियों को पानी ना मिले। पानी बिलाखिर खत्म होना था जब खैमों में जखीरा था। मालिक इधर साला रहे, मालिक अश्तर नखई रिजवानुल्लाह ताला अलैह इधर साला रहे। मालिक अश्तर ने आकर कहा मौला पानी खत्म होने को है और अब कुछ देर के बाद यानी आज के फला वक्त के बाद पानी खत्म होने की सूरत में हमारे लश्कर मुश्किल में आ जाएगा, हमला करूं? हजरत ने फरमाया तारीख लिखेगी। ये मौला के जुमले नहीं है, ज़बान हाल है। मौला के जुमले ये नहीं है, ज़बान हाल में बता रहा हूँ। मौला ने जो लफ्ज बोले उसका मतलब बता रहा हूँ। फरमाया तारीख लिखेगी कि 2 लोग पानी पे लड़े, पानी पे लड़ाई हुई है। तो नहीं मालिक पानी के लिए लड़ने नहीं जाओ, पानी की खातिर लड़ने नहीं जाओ। मौला फिर ये जिंदगी? हजरत फरमाया जाओ तुम अकेले जाकर पानी ले आओ, जाओ उसी फुरात पर जहाँ कब्जा है वहां जाकर पानी ले आओ। मालिक ने ये नहीं पूछा कि मैं तो लश्कर ले जाने की बात कर रहा हूँ तो आप इजाजत नहीं दे रहे। अब आप मुझे तन्हा जाने का हुक्म दे रहे हैं तो मैं बचूंगा या शहीद हो जाऊंगा? मालिक जानते हैं इमाम की इताअत में जिंदगी है। भाई सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले। मालिक ने ये नहीं पूछा कि मैं अकेला जाऊंगा तो क्या बनेगा। मालिक तो मौला कह रहे हैं जाओ अकेले जाके पानी लेकर आओ। और मालिक ने सवारियों पर मशकीज़े लादे और फुरात की तरफ चले गए और सारी सवारियां पानी से भरकर फुरात से पानी मशके भर के वापस आ गए। उधर जो साहब खड़े हुए 3,500 का लश्कर लिए हुए, उन्हें बुला लिया खेमे में, मरकजी खेमे में कि तुम इतनी बड़ी तादाद में खड़े हो और अली का सिपा सालार अकेला पानी ले गया। कहने जी हमारी मजाल ये हम न देते। आपके मुशीर खास आपके वजीर आजम हजरत अम्र आस आए थे उनके साथ, उन्होंने कहा था कि पानी दे दो। बुला लिया, बराबर का लई खैमा था, बुला लिया कि अमराज तुम गए थे? झूठ बोल रहा है, मैं क्यों जाऊंगा। ये ज्यादा दिन बात चली नहीं। दूसरे या चौथे दिन मालिक अश्तर ने फिर आकर कहा मौला पानी। हजरत फरमाया जैसे पहले लाए थे ऐसे ले आओ। भाई किताब में ये मौला अली के मौजज़ों में एक मौजज़ा है, जब भी मैं मुकम्मल करूंगा तो आपको लुत्फ आएगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले में। भाई मालिक दूसरी मर्तबा गए और पानी लेकर आए और ऐसे ही जैसे पहले गए थे फिर बुला लिया बरगजी खेमे में कि भाई ये क्या हुआ। कहा हुजूर मेरी मजाल आपके बेटे यजीद आए थे, उन्होंने कहा था दे दो इन्हें। उन्हें बुला लिया, कहा जी मैं तो बाहर ही नहीं निकला खेमे से। तीसरी मर्तबा फिर मालिक ने आके कहा मौला पानी। हजरत फरमाया जैसे पहले लाए थे फिर ले आओ। और मालिक लेकर आ गए। फिर बुला लिया, भाई आप कौन आया था? हुजूर आप खुद आए थे। वो कहने लगे आप खुद आए थे मालिक के साथ? कहा मैं आया था। ताज्जुब ये हुआ कि ये मेरे मुंह पे मुझे कह रहा है कि मैं आया था जबकि मैं नहीं गया। कहा आइंदा अगर ऐसा हो तो दलील से बात करो, तुम्हारी सारी बातों को झुटलाया जा रहा है। चौथी मर्तबा मालिक पानी लेकर आए, 5वीं मर्तबा की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जा जा 5 चौथी मर्तबा मालिक पानी लेकर आए तो फिर बुला लिया कि अब कौन आया था? कहा हुजूर आप आए थे। कहा दलील क्या है? कहा मैंने आपको यकीन दिलाने के लिए आपके हाथ की अंगूठी उतरवा ली। जैसे ही उसने ये कहा इन्होंने अपने खाली हाथ को देखा और बेसाख्ता कहा हाज़ा मिन अजाइब अली इब्न अबी तालिब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बलंतर सलवात मोहम्मद वाले। कैसी जंग, कैसा माहौल। फिर मौला अली की जिंदगी की आखिरी जंग जो जंग नहरवान है, वो जंग तो ऐसी जंग है कि जो किसी जंग से काबिल मुकायसा नहीं। पेशानी पे सजदों के निशान, हाथों में तस्बीहें, हाफिजाने कुरान, दाइमुस सौम सियाम, दाइमुल वुजू रहने वाले, और 1-2 नहीं 4,500 जिन्हें मेरे मौला अली ने मारा है। 4,500। सिर्फ 9 लोग बचे थे जो अली ने पहले बता दिया था। इतनी बड़ी तादाद में सजदा करने वाले और नमाजें पढ़ने वालों को मौला अली ने मारा। सोच लीजिए थोड़ा सा कितनी मुश्किल जंग हो गई है।